پاک فوج میں اعلیٰ سطح پر تقرر اور تبادلے کر دیے گئے ہیں۔ ISPR کے مطابق لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد مرزا کو کور کمانڈر راولپنڈی اور لیفٹیننٹ جنرل محمد چراغ حیدر کو کور کمانڈر ملتان لگا دیا گیا ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل محمد وسیم اشرف کو ڈائریکٹر جنرل جوائنٹ چیفز آف سٹاف ہیڈ کوارٹرز تعینات کر دیا گیا ہے، جبکہ لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس کو چیف آف جنرل سٹاف کی ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں۔ پاک فوج میں اعلیٰ سطح پر تقرر اور تبادلے کیے گئے ہیں۔ ISPR کا کہنا ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد مرزا کو کور کمانڈر راولپنڈی کے لیفٹیننٹ کو ڈائریکٹر جنرل جوائنٹ چیفز آف سٹاف ہیڈ کوارٹر تعینات کیا گیا ہے، جبکہ لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس کو چیف آف جنرل سٹاف کی ذمہ داریاں سونپ دی گئی ہیں۔ لیگ رہنما میاں جاوید لطیف کہتے ہیں کہ میڈیا کنٹرول اتھارٹی بل کو قائمہ کمیٹی سے کسی صورت منظور نہیں ہونے دیں گے۔ ارکان پارلیمنٹ میڈیا کے ساتھ کھڑے ہیں۔ نیشنل پریس کلب میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میڈیا دھرنا دے گا تو ہم بھی ان کے ساتھ دھرنا دیں گے۔ ہم میڈیا کے ساتھ ہیں اور یہ سٹینڈنگ کمیٹی جو ہے اس میں بل آیا تو کسی طور پر ہم اس کو منظور نہیں ہونے دیں گے۔ اور دوسرا، ہم ہر حال میں جہاں آپ کھڑے ہوں گے ارکان پارلیمنٹ اور اس میڈیا کے ممبران آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور میں توقع رکھتا ہوں پاکستان کے دیگر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے بھی کہ وہ بھی آپ کے اس قدم سے قدم ملا کے کھڑے ہوں گے آپ کے ساتھ، کیونکہ یہ آپ کی آزادی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ پوری پاکستانی قوم کا ہے۔ اور وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے جاوید لطیف کو سیاسی جوکر قرار دے دیا۔ کہا اصلاحات میڈیا میں ہوں، معاشی نظام میں یا انتخابی عمل میں، ہمارا راستہ واضح ہے۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی سیاست بس تاریخیں لینے اور فیصلے ٹالنے تک ہے۔ کسی کو اصلاحات میں دلچسپی ہے نہ نظام کو مستحکم کرنے میں کردار ہے۔ انہوں نے کہا کہ غیر انڈین پنجابی فلموں سمیت غیر ملکی فلموں کو پاکستان میں درآمد کی اجازت دے رہے ہیں۔ جاوید لطیف صاحب ایک سیاسی جوکر ہیں، چاہے اصلاحات میڈیا میں ہوں، چاہے اصلاحات ہمارے الیکٹورل سسٹم میں ہوں، چاہے ہمارے معاشی نظام میں ہوں یا گورننس کے نظام میں۔ ایک جماعت جو اس وقت ریفارمز کی بات کر رہی ہے وہ تحریک انصاف ہے۔ اس وقت تک کی جو سیاست ہے PMLN کی اور پیپلز پارٹی کی، وہ صرف یہ ہے کہ ہمیں عدالتوں سے تاریخیں ملتی رہیں اور ہم آگے چلتے رہیں اور ہمارے جو کیسز ہیں ان کا فیصلہ جو ہے وہ نہ ہو سکے۔ تمام جو سیاست ہے وہ اس کے ارد گرد گھوم رہی ہے، نہ ہی کوئی اصلاحات میں ان کی کسی میں کوئی دلچسپی ہے۔ سینما انڈسٹری کی بحالی کی غرض سے ہم نے یہ تجویز پیش کی تھی کہ جو نان انڈین پنجابی فلمز ہیں پاکستان میں الاؤ کیا جائے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی سے میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی بل کو متنازع قرار دے دیا۔ چودھری پرویز الہی نے بل میں میڈیا کے خلاف متنازع شقیں فوری واپس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ چودھری پرویز الہی سے پاکستان براڈ کاسٹنگ ایسوسی ایشن، APNS، CPNE، PFUJ اور PUJ سمیت تمام نمائندہ صحافتی تنظیموں کے نمائندوں نے ملاقات کی۔ اس موقع پر چودھری پرویز الہی کا کہنا تھا کہ میڈیا کی آزادی پر کسی قسم کی بھی قدغن لگانا ہمارے اپنے مفاد میں نہیں۔ وزیر اعظم میڈیا کے خلاف بل میں متنازع شقیں فوری واپس لیں، اس میں انا کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ چودھری پرویز الہی سے ملاقات کرنے والوں میں میر ابراہیم، میاں عامر محمود، چودھری عبدالرحمان، کاظم خان، ایاز خان، مجیب الرحمان شامی، سلیم بخاری، میاں طاہر محمود، سرمد علی، شکیل مسعود، رانا عظیم، محمد عثمان، شہزاد بٹ، ایاز شجاع، ذوالفقار مہتو اور نوشاد علی شامل تھے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی نے میڈیا ریگولیٹری بل کو متنازع قرار دے دیا ہے۔ چودھری پرویز الہی نے بل میں میڈیا کے خلاف متنازع شقیں فوری واپس لینے کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ چودھری پرویز الہی سے پاکستان براڈ کاسٹنگ ایسوسی ایشن، APNS، CPNE، PFUJ اور PUJ سمیت تمام نمائندہ صحافتی تنظیموں کے نمائندوں نے ملاقات کی۔ اس موقع پر چودھری پرویز الہی کا کہنا تھا کہ میڈیا کی آزادی پر کسی بھی قسم کی قدغن لگانا ہمارے اپنے مفاد میں نہیں۔ وزیر اعظم میڈیا کے خلاف بل میں متنازع شقیں فوری واپس لیں، اس میں انا کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ چودھری پرویز الہی سے ملاقات کرنے والوں میں میر ابراہیم، میاں عامر محمود، چودھری عبدالرحمان، کاظم خان، ایاز خان، مجیب الرحمان شامی، سلیم بخاری، میاں طاہر محمود، سرمد علی، شکیل مسعود، رانا عظیم، محمد عثمان، شہزاد بٹ، ایاز شجاع، ذوالفقار مہتو اور نوشاد علی شامل تھے۔
पंजाब की अफसर शाही में एक बार फिर बड़ी तब्दीली कर दी गई। 3 साल में 5वां चीफ सेक्रेटरी और 7वां आईजी आ गया। पुलिस की कमान अब सरदार अली खान संभालेंगे। कामरान अली अफजल 3 सीनियर अफसरों को सुपरसीड करके चीफ सेक्रेटरी बन गए। जवाद रफीक मलिक को वफाकी सेक्रेटरी सनत व पैदावार और इनाम गनी को आईजी रेलवेज पुलिस तैनात कर दिया गया। पंजाब में एक बार फिर आला ओहदों पर फाइज अफसरों की उखाड़ पछाड़ कर दी गई। 3 साल में 7वां आईजी पुलिस तैनात कर दिया गया। इनाम गनी की जगह राव सरदार अली खान को पुलिस की कमान सौंप दी गई। दूसरी तरफ डॉक्टर कामरान अली अफजल 5वें चीफ सेक्रेटरी पंजाब बन गए। वो 3 सीनियर अफसरों को सुपरसीड करके इस ओहदे पर पहुंचे हैं। डॉक्टर कामरान अली अफजल एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम जफर नसरुल्लाह से 5 साल, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बाबर हयात तारड़ से 3 साल और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी इरम बुखारी से 2 साल जूनियर हैं। तर्जुमान पंजाब हुकूमत फयाजुल हसन चौहान ने आला ओहदों पर बार बार की तब्दीली पर तनकीद। वफाकी ब्यूरोक्रेसी में तकर्रुर और तबादले कर दिए गए। एडिशनल सेक्रेटरी ताहिर खुर्शीद को सेक्रेटरी नेशनल फूड सिक्योरिटी का चार्ज दे दिया गया। अनवारुल हसन को एडिशनल सेक्रेटरी वजारत मजहबी उमूर तैनात कर दिया गया। सीनियर जॉइंट सेक्रेटरी नारकोटिक्स कंट्रोल डिवीजन सबीनो सिकंदर की तरक्की के अहकाम वापस ले लिए गए। 20 मार्च 2020 को सबीनो सिकंदर को ग्रेड 21 में तरक्की दी गई थी। इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने इस बारे में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। वफाकी ब्यूरोक्रेसी में भी तकर्रुर और तबादले किए गए हैं। एडिशनल सेक्रेटरी ताहिर खुर्शीद को सेक्रेटरी नेशनल फूड सिक्योरिटी का चार्ज दिया गया है, जबकि अनवारुल हसन को एडिशनल सेक्रेटरी वजारत मजहबी उमूर तैनात कर दिया गया। सीनियर जॉइंट सेक्रेटरी नारकोटिक्स कंट्रोल डिवीजन सबीनो सिकंदर की तरक्की के अहकाम वापस ले लिए गए हैं। 20 मार्च 2020 को सबीनो सिकंदर को ग्रेड 21 में तरक्की दी गई थी। इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने इस बारे में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। महकमे खुराक की नाअहली का खुमियाजा अवाम भुगतने लगे। गंदम की रिकॉर्ड पैदावार के बावजूद आटा तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया। लाहौर में फ़ी किलो आटा 60 रुपये का हो गया, जबकि 20 किलो आटे का थैला 40 रुपये महंगा होकर 1200 रुपये का हो गया है। गंदम की फ़ीमन कीमत 2195 रुपये तक जा पहुँची है। इसी बारे में मज़ीद जानते हैं राव दिलशाद हुसैन की रिपोर्ट में। 20 किलो आटे का थैला तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा दिया गया। आटे का 20 किलो का थैला 1200 रुपए का हो गया। गंदम की फीमन कीमत 2115 रुपए से बढ़कर 2195 रुपए तक पहुंची, तो आटे का थैला 1160 से बढ़कर 1200 रुपए का हो गया, जबकि फ्लोर मिल्स में 20 किलो आटे का थैला 1170 रुपए तक पहुंच गया। शहरी कहते हैं महंगाई ने कमर तोड़ कर रख दी है। आटे की कीमत में हर रोज इजाफे के बाइस मुश्किलात का शिकार है। इस दौर में महंगाई बढ़ी है, आई थिंक मैंने नहीं देखा है जनाब। इस हुकूमत को सोचना चाहिए गरीबों के लिए कि आटे के और चीनी के दाम भी बढ़ते जा रहे हैं, घी के दाम भी बढ़ते जा रहे हैं, हम क्या खाएंगे। चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन आसिम रजा के मुताबिक सरकारी गंदम की रिलीज में ताखीर के बाइस सारा बोझ ओपन मार्केट पर पड़ा है। गंदम की रिलीज में मजीद ताखीर से आटे की कीमत में मजीद इजाफा होगा। ये जो इन बिटवीन मिडिल मैन एक्स्ट्रा जो मार्जिन और मुनाफाखोरी कर रहा है, उसको रेट पता हो कि सरकारी क्या है, उसके मुताबिक वो नीचे रेट करेंगे अपने। अदरवाइज तो ये रुकने वाला सिलसिला नजर नहीं आ रहा। जब तक हुकूमत इशू नहीं करेगी, रिव्यू नहीं करेगी, तो ये प्राइसेस मुसलसल बढ़ती है। गंदम का सरकारी रेट 1875 रुपए फी मन मुकर्रर किया गया। ताहम गंदम सरकारी रेट के बरअक्स फरोख्त हो रही है। शहर में 75 से 80 हजार बोरी योमिया खपत है। सरकारी गंदम की बजाय ओपन मार्केट से गंदम की खरीदारी मजबूरी बन गई है। सरकारी गंदम रिलीज करने के वादे पर ताहाल खामोशी है। डॉलर की ऊंची उड़ान थम न सकी। एक दिन में इंटरबैंक में डॉलर 40 पैसे महंगा होकर एक साल की बुलंद सतह 167 रुपये 63 पैसे पर जा पहुंचा। ओपन मार्केट में भी डॉलर 80 पैसे महंगा हो गया। कराची से अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। रुपया मजीद कमजोर और डॉलर मजीद तगड़ा हो गया। एक दिन में इंटरबैंक में डॉलर 40 पैसे महंगा होकर साल की बुलंद तरीन सतह 167 रुपए 63 पैसे पर पहुंच गया। 2 माह 9 रोज में इंटरबैंक में डॉलर 10 रुपए 9 पैसे महंगा हो चुका है। फॉरेक्स एसोसिएशन के सदर मलिक बोस्तान का कहना है कि 2 साल बाद पहली बार इंटरबैंक और आवाम में डॉलर की डिमांड 50% बढ़ गई है। अब 40,000 और 25,000 रुपए वाले प्राइस बॉन्ड से डॉलर खरीदा जा रहा है। तो पाकिस्तान में डॉलर की डिमांड इंटरबैंक बढ़ने की वजह से बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि 30 सितंबर को जो 40,000 के बांड हैं उनकी मुद्दत ख़त्म होने वाली है और लोग जिनके पास बांड पड़े हैं वो अपने पैसे को बजाय सिलेंडर करा के उस पैसे से वो ले रहे हैं, डॉलर ख़रीद रहे हैं, जिसकी वजह से पब्लिक में डॉलर की डिमांड बढ़ गई और उसकी पहली दफ़ा 2 साल में हुआ कि मार्केट में डिमांड आई है, वरना इससे पहले 90% हमारी
इंटर बैंक में हम सेल करते थे, 10% पब्लिक लेती थी। इंटर बैंक के बाद ओपन मार्केट में भी डॉलर और दीगर करेंसियां महंगी हो गईं। ओपन मार्केट में डॉलर 80 पैसे महंगा होकर 168 रुपए 70 पैसे पर जा पहुंचा। यूरो 1 रुपए महंगा होकर 200 रुपए और बरतानवी पाउंड भी 1 रुपए महंगा होकर 233 रुपए की बुलंद सतह पर पहुंच गया। इमारती दरहम एक दिन में 50 पैसे महंगा होकर 46 रुपए 30 पैसे और सऊदी रियाल 20 पैसे इजाफे से 44 रुपए 75 पैसे का हो गया। शेखुपुरा में कोरोना पर काबू पाने के लिए वैक्सीन लगाने का अमल तेज़ कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद असगर जोइया ने CEO म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एहसन इनायत संधू के हमरा वारिस शाह ऑडिटोरियम हॉल में कायम वैक्सीनेशन सेंटर का दौरा किया और इंतजामात का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने वैक्सीनेशन सेंटर में तैनात अमले को हिदायत जारी की कि वैक्सीन करवाने के लिए आए शहरियों से हर मुमकिन ताउन करें। डिप्टी कमिश्नर DHQ अस्पताल भी गए। अस्पताल में ज़ेर इलाज मरीजों को दी जाने वाली सहूलियात का भी जायजा लिया। उन्होंने शहरियों में मास्क तकसीम किए और कोरोना SOPs पर अमल दरामद करने और खानदान को फौरी वैक्सीनेशन करवाने की हिदायत भी की। कराची में पुलिस के दावों के बावजूद स्ट्रीट क्राइम के जिन पर काबू पाने में नाकाम हो गई। रवां साल अब तक जराइम की 50,000 से ज़ायद वारदातें रिकॉर्ड हो चुकी हैं। 8 माह के दौरान डकैती मज़ाहमत पर 54 अफराद जान से हाथ हो गए थे। इसी बारे में दानियल सैयद की रिपोर्ट देखते हैं। हुक्काम का जराइम की कमी का दावा, हकीकत बरक्स। शहर में स्ट्रीट क्राइम का ग्राफ फिर बुलंद होने लगा। गुज़िश्ता साल की निस्बत रवां बरस स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में 35% इजाफा हुआ। रवां साल स्ट्रीट क्राइम की वारदातें 50,000 से तजावुज कर गयीं, जो गुज़िश्ता साल के पहले 8 माह 37,000 थी। CPLC रिकॉर्ड के मुताबिक शहर कायद की सड़कों पर 8 माह से डकैती मज़ाहमत पर 54 अफराद को कत्ल और 458 को जख्मी कर दिया गया। 8 माह के दौरान शहरी 34,181 मोटरसाइकिलों से महरूम कर दिए गए। 1268 गाड़ियां भी चोरी व छीन ली गयीं। CPLC हुक्काम के मुताबिक रवां साल मोबाइल फोन छीनने की 14,578 वारदातें हुई। कराची में सीव्यू से 48 रोज़ बाद निकलने वाले जहाज़ को एक और मुश्किल पड़ गई। जहाज़ को 10 घंटे गुजर गए मगर अभी तक इसे पोर्ट की जानिब से बर्थ की इजाज़त नहीं मिल रही है। 48 दिन के बाद सीव्यू से इस जहाज़ को निकाल तो लिया गया लेकिन अब एक और रुकावट का सामना है। 10 घंटे गुजर चुके हैं इसे समंदर में धकेले हुए, लेकिन अभी तक इसे पोर्ट की जानिब से बर्थ की इजाज़त नहीं मिल रही है। शिपिंग एजेंट कैप्टन आसिम इकबाल का कहना है कि चेयरमैन KPT को भी इन्फॉर्म कर दिया लेकिन अभी तक कोई टग आया और ना ही बर्थ पर ले जाने की इजाज़त मिल रही है। जहाज़ के कप्तान ने लंगर डालने से मना किया है और इस हवाले से अभी तक इजाज़त नहीं मिली है। उनका ये कहना है कि मेरे पास जहाज़ को लंगर वापस निकालने की मशीन दस्तयाब नहीं है। कप्तान ने शिपिंग एजेंट को जवाब दिया है।